لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ زمین کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ ان ذوات کا نام ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوا، بیٹھنا نصیب ہوا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا نصیب ہوا، حضور کے ساتھ جنگوں میں جانا نصیب ہوا، حضور کو دیکھنا نصیب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا نصیب ہوا۔ ہم لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا کرتا تھا، صحابہ کے سامنے قرآن اترا کرتا تھا۔ اور سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ والضحیٰ، انہوں نے رات و دن دیکھا، صبح و شام دیکھا، امن میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی گھوڑوں کی ٹانپوں سے لگی ہوئی جو گرد و غبار ہے، جب وہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جہاد میں جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی ٹانپ سے لگنے والی گرد کی قسم دی، قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی ہے۔ جس کے گھوڑوں کی ٹانپ کی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والے صحابہ صحابہ کرام وہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے، تو صحابی کا مٹھی پر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یعنی کوئی اعمال کے معاملے میں بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ ابو ہریرہ نے تو مٹھی پر جو خیرات کیے تھے، آج 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صحابی کے مٹھی پر جو کے برابر بھی احد پہاڑ سونا تمہارا خیرات کرنا دونوں اکمل نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سوچو تو صحیح، صحابہ کی نماز کی طرح کس کی نماز ہو سکتی ہے؟ کسی کی نماز غوث الاعظم دستگیر کے پیچھے، کسی کی نماز صدیق اکبر کے پیچھے، کسی کی نماز اللہ اکبر غریب نواز کے پیچھے، کسی کی نماز امام اہل سنت کے پیچھے۔ صحابہ کی نمازیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہوئی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کی نگاہیں اٹھ جائے تو دم میں دم آ جائے۔ صحابہ کرام نے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کی دعائیں حاصل کی ہے۔ میرے آقا نے ان کو دعائیں دی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی حضور علیہ السلام و تسلیم کا درجے کے اعتبار سے اس کا درجہ کتنا ہی کم ہو، بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی اس کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب عام صحابہ کا مرتبہ یہ ہے، عام صحابہ کا، تو جو حضور کے صحابہ میں درجے والے صحابہ ہوں گے ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ صحابہ میں بھی درجے ہیں، جیسے جو صحابہ ہیں ان میں افضل صحابہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان میں بھی افضل وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر پہلے اول ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، وہ سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون میں بھی وہ افضل ہیں جنہیں ہم 4 یار کہتے ہیں، اور ان 4 یاروں میں سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں وہ شان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ مراد ہے۔
फारूक आजम मुराद मुस्तफा जान रहमत है, मुराद रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे जुमा में अल्लाह से मांगा था उमर इब्ने खत्ताब को, अर्ज किया था अल्लाह मक्के में दो उमर है, एक उमर बिन हिशाम है और एक उमर इब्ने खत्ताब है, दोनों में से किसी एक को ईमान की दौलत अता फरमा और उसके जरिए से इज्जत अता फरमा। अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब को इज्जत, उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम की दौलत अता की और उनके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता की। सहाबा कहते हैं कि जिस दिन से उमर ने इस्लाम कबूल किया है, हर दिन इस्लाम के लिए तरक्की का दिन साबित हुआ, हर दिन उरूज का दिन साबित हुआ। बड़ी माजरत के साथ आज मैं अपने जवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग सरकार गौसे पाक का तस्करा करते हैं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम कयामत तक करते रहेंगे, दम में जब तक दम में करते रहेंगे। सरकार गरीब नवाज का जिक्र भी करते हैं, दम में जब तक दम में करते रहेंगे और इनके जिक्र करने को हम अपने सय्यात का कफारा तस्वुर करते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हर सिलसिले का आदमी अपने पीरों का जिक्र करता है, लेकिन सहाबा के अस्कार, सहाबा के आरास, सहाबा किराम की जिंदगी बहुत कम से कम बयान की जाती है। 11वीं में गौस पाक की न्यास तो होगी, लेकिन 26 जिलहज्जा को मुसलमानों के घरों में फारूक आजम की न्याज नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि फारूक गौस पाक की न्याज मत कर, गौस पाक से ज्यादा इसाले सवाब का अगर कोई हकदार है तो वो हुजूर के सहाबा है। इसलिए कि गौसे पाक तक जो दीन पहुंचा उसमें सहाबा का खून शामिल है। हम अपने बच्चों को बताएं, 11वीं मनाते हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन 26वीं भी तो मनाई जानी चाहिए। 18 जिलहज्जा उस्मान गनी की शहादत भी तो मनानी जानी चाहिए। 22 जमादिल आखिर सिद्दीक अकबर का जिक्र भी तो करना चाहिए, ताकि बच्चे बच्चे को पता चले कि हजरत सहाबा की कुर्बानियां क्या है। 21वीं रमजान शरीफ मौलाए कायनात का उर्स भी तो होना चाहिए, इसलिए कि वो तो खातिमे विलायत है। मगर बड़े अफसोस के साथ हम हर कली के पीर का उर्स करते हैं और जो लोग हकीकत में उर्स के हकदार हैं उनका उर्स नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसीलिए खारजियों ने उन सहाबा का जिक्र करना शुरू किया और ये ताना देना शुरू किया कि सुन्नी सहाबा का जिक्र नहीं करते, हालांकि हमसे बेहतर कोई सहाबा का जिक्र कर नहीं सकता। हमसे बेहतर कोई सहाबा का, अहले सुन्नत से बेहतर कोई सहाबा का न सहाबा का जिक्र कर सकता है, न अहले बैत का जिक्र कर सकता है, न रसूलुल्लाह का जिक्र कर सकता है। अगर किसी को अल्लाह वालों का जिक्र करने का हक है तो उसकी अहले सुन्नत व जमात में उमर फारूक आजम अजहर कॉन्फ्रेंस हम अपने मशाइख का, अपने पीरों का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सहाबा किराम के दिन भी मनाने के लिए हम आज से कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन मनाओगे तो पता चले कि सहाबा क्या है। फारूक आजम मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, वो रसूल जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाएंगे। वो रसूल जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत दी कि इशारा करे तो सूरज पलट आएगा। वो रसूल जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत अता की कि जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत में लाखों सलाम। लेकिन मेरे आका ने दुआ की, ए अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सहाबा कहते हैं जिस दिन से उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया, फारूक आजम से पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे और फारूक आजम 40वें नंबर पर मुसलमान हुए। और उस दिन के बाद से इस्लाम को कैसी इज्जत मिली, ये फारूक आजम का कारनामा क्या है, सैयदना फारूक आजम की कोशिशें क्या है, फारूक आजम की काविशें क्या है। सैयदना फारूक आजम जब इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद अपने करीब आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। पहले तो ये सुने कि जिस दिन फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त मेरे आका दारे अरकम में मौजूद थे। फारूक आजम के इस्लाम की खबर को सुनकर सहाबा ने खुशी में
लगाते हैं। और जब फारूक आजम मुसलमान हुए तो पूछा आका क्या हम हक पर नहीं, क्या हम हक पर नहीं है? आका ने कहा उमर हक पर है। फिर पूछा हुजूर जब हम हक पर है तो इस छोटे से कमरे के अंदर हम छुप छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हमें एलानिया नमाज पढ़नी चाहिए। ये फारूक आजम की काविश है, ये उनकी कोशिश है। हालांकि हुजूर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन ये मेरे करीम आका का अंदाज है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है। सैयदना फारूक आजम ने कहा हुजूर हम हक पर नहीं, कहा बिल्कुल हम हक पर है। तो पूछा कि फिर हम चुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? आका ने फरमाया कि कुफ्फार की ईजा पहुंचाने की वजह से, कि वो कहीं ईजा ना पहुंचाए सहाबा को। फारूक आजम ने कहा हुजूर चलिए हम सहने काबा में नमाज पढ़ेंगे और मैं देखता हूं कि आपको नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। तारीख में आता है कि सैयदना फारूक आजम आगे आगे और आखिरी में हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमजा पीछे पीछे, एक आगे एक पीछे। अल्लाह अकबर, ये चले और उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया जिसको अपनी औरतों को बेवा करना हो और अपने बच्चों को यतीम करना हो, आपको मेरे रसूल को रोक करके बता दे कि काबे के सामने ये नमाज क्यों नहीं पढ़ती। इससे कितना फारूक आजम की शान है, जिस दिन इस्लाम कबूल किया है उस दिन अल्लाह अकबर गोया के कुफ्र की कमर तोड़ दी है। सैयदना फारूक आजम ने कहा हम अलग एलान नमाज पढ़ेंगे। जिस दिन उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया उस दिन मुसलमानों ने सहने काबा में पहली मर्तबा एलानिया तौर पर नमाज अदा की है। ये एहसान है कि मुसलमानों पर उमर इब्न खत्ताब का। इसी पर बस नहीं, फिर सैयदना फारूक आजम जब हिजरत का मौका आया तो हिजरत के मौके पर सैयदना फारूक आजम अल्लाह अकबर सारे सहाबा अपने अपने अंदाज से छुप छुप कर हिजरत करते रहे। लेकिन जब फारूक आजम मक्के से जाने लगे तो तलवार कमर में लटकाई, हाथ में नेजा संभाला और काबे का तवाफ किया। और काबे का तवाफ करने के बाद कहते हैं मक्के के काफिरों, उमर इब्न खत्ताब हिजरत करके मक्के से जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सैयदना फारूक आजम की शान है। इस शान से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। कमेंट शेयर जरूर करिए।